Good morning, everyone. My name is Kirti. In today's video, we will discuss the chapter number 9 of grade 7th SST, that is medieval period. Now, kids, all you have to do is open page number 69 in your book, and in case if you are not having the book, then you can download the books in PDF form. As you can see, I have downloaded. I'll give you the link to download the books in my description box. All you have to do is just click on the link and here you go. You'll download the book from there. So, before starting the chapter, I'll tell you a brief introduction about this chapter. In the chapter, we will discuss about the medieval time and the sources of information of that period. We will discuss that how we got to know about medieval period. So, without any further delay, let's jump into our chapter. History is divided into 3 periods. History को 3 period में divide करा गया है. Number 1 is ancient, second is medieval and third is modern. Ancient, medieval and modern. Ancient से हमें पता चलता है प्राचीन, पुराने टाइम की. Medieval मध्यकालीन and modern indicates आधुनिक. In class 6, we have studied about the ancient history. हमने क्लास 6 में ancient history के बारे में पढ़ा था. The period from prehistoric times to 7th century. Prehistoric time से 7th century तक का period is known as ancient history. Now, in class 7, we will discuss about the medieval period, the history about it, and the civilization of that period. So, in Europe, the period from 5th to 15th century CE is known as medieval period. यूरोप में 5th से लेके 15th century तक का जो टाइम है, तक का जो पीरियड है, that is known as medieval period. But in India, the period from 8th to 18th century is known as medieval period. इंडिया में 8th से 18th century तक का जो टाइम पीरियड है, that is known as medieval period. Now I know it seems quite confusing कि मैम how we will learn 5th to 15th century, 8th to 18th century. I know that's a bit confusing. So here I am with a trick to learn this. Europe starts from the alphabet E. Count that alphabet on your fingertips. A, B, C, D, E. E comes at the 5th number. So it means E indicates to 5. If E indicates to 5, 5 means 5th. You can easily get the idea. E for Europe, E indicates to 5th number and 5th to 15th century, that is the medieval period of Europe. So, if 5th to 15th century is the medieval period of Europe, the remains is 8th to 18th century. So, it is quite obvious that it will be the medieval period of Indian history. Now, during this period, several important changes took place in the social, economic and political structure of Europe, America and Asia. Though in the ancient period, Indian culture has remained aloof from the outside world. During the medieval period, Indian culture was highly influenced by changes that took place in other countries. इस टाइम पे इस पीरियड में क्या हुआ था, बहुत ही सारे चेंजेस हुए थे यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में. वो दैट चेंजेस इंक्लूड द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन तीनों ही जो स्ट्रक्चर है इनमें चेंजेस हुए थे. सोशल मीन्स सामाजिक, इकोनॉमिक होता है अर्थशास्त्री एंड पॉलिटिकल इज राजनैतिक. लेकिन इंडिया इससे रिमेन क्वाइट अलूफ. अलूफ मीन्स होता है दूर. इंडिया इन चेंजेस से बहुत ही क्या था, दूर था. इंडिया में कोई भी चेंजेस उस टाइम पे अकर नहीं हो रहे थे. बट धीरे धीरे जैसे ही अदर कंट्री में ये चेंजेस होने लगे तो इंडिया ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड. इंडिया भी इससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित हुआ. तो धीरे धीरे इंडिया में भी ये चेंजेस होने लगे. और these influences are evident in the culture, administration, economy, language and religious belief of the people even today. और ये जो changes उस टाइम पे हुए वो आज भी हमारी सोसाइटी में हैं और कहीं ना कहीं उनके एविडेंट यानी कि उनके जो सबूत हैं वो हमें आज के टाइम पे भी देखने को मिलते हैं. Now we will discuss our next topic, that is sources of information.
In this topic, we will discuss that how we got to know about the medieval period. हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला, हमें कहाँ से पता चला उस मेडिवल पीरियड के बारे में. जैसे कि अभी आप और मैं पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ से पता चल रहा है. फॉर बोथ ऑफ अस द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिवल पीरियड इज़ दिस बुक. हमारे लिए सिर्फ ये जो बुक है, हमें इस बुक से पता चला. तो दिस बुक इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अस. बट एक्चुअल में जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे कि हमें ये बुक्स भी जिससे प्रिंट हुई हैं, ये तभी तो प्रिंट हुई हैं ताकि पहले से ही ये सब क्या था हमें पता था. तो इसीलिए अब हम इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, सोर्सेज क्या थे. तो द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन of the medieval period are literature and archaeological findings. तो जो मेन सोर्सेज थे वो हैं लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स. जितना भी लिटरेचर वर्क जो हुआ था, लिटरेचर मीन्स होता है साहित्य, एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हमें मिली थी. आर्कियोलॉजी दैट इज़ पुरातात्विक, जो भी पुरानी चीज़ें हमें मिली थी. पुरातात्विक क्या होता है? आर्कियोलॉजी इज़ अ डिपार्टमेंट. जैसे कि हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन एंड द सिस्टम ऑफ इट. बट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है? पुरानी चीज़ें उनको मिलती हैं, वो ढूंढते हैं, वो सर्च करते हैं. कई बार एक्सकेवेशन उन्हें करना पड़ता है. एक्सकेवेशन मीन्स डिगिंग द ग्राउंड, और फिर उन्हें कई पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो दे डू द स्टडी अबाउट दैट फाइंडिंग्स. वो उन फाइंडिंग्स के लिए स्टडी करते हैं, और जो भी चीज़ें उन्हें मिली होती हैं वो उन्हें प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखते हैं ताकि हमें और हमारी आने वाली जनरेशन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले. तो इन सब चीज़ों से हमें क्या है, मेडिवल पीरियड के बारे में नॉलेज मिली है. The literature of this period consists of religious works and commentaries based on Purans, Smritis, etc. उस टाइम का जो लिटरेचर वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वर्क था, जिससे कि हमें उस टाइम के रिलीजन के बारे में पता चलता है. वे लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, कौन से भगवान जी की वे पूजा करते थे, लाइक दैट. वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड military conditions of that period from non-religious work on medicine, astronomy, dramas, society and other literature. और हमें कुछ ऐसे वर्क हैं जो नॉन रिलीजियस हैं. नॉन रिलीजियस मीन्स जो भगवान से रिलेटेड नहीं हैं, उनसे हमें वहाँ की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशंस पता चलती है, मिलिट्री कंडीशंस पता चलती है, और मेडिसिन्स के बारे में पता चलता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ड्रामास, स्टोरीज, other kind of literature are also there. The autobiographies, orders of the rulers and letters written during that period also help us to understand the life of the people during the medieval period. और उस टाइम के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, जो या फिर जो मुग़ल रूलर्स थे, उनके बारे में भी हमें पता चलता है उनकी ऑटोबायोग्राफीज से. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, खुद से लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी. अगर किसी के बारे में समवन एल्स इज़ राइटिंग तो दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी. तो जो उस टाइम के किंग्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, वो जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे तो उसमें हमें उनकी जो मिलिट्री है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती थी. For example, Prithviraj Raso, written by Chand Bardai, throws light on the administration and the life of people in North India during the region of पृथ्वीराज चौहान. हम एग्जाम्पल के तौर पे पृथ्वीराज रासो को ले सकते हैं. पृथ्वीराज रासो इज़ अ बुक जिसे लिखा था चांद बरदाई ने. वो क्या करती है? दैट बुक थ्रोज लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान जो नॉर्थ इंडिया के रूलर हुआ करते थे, उनकी लाइफ के बारे में और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन के बारे में हमें नॉलेज देती है. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम मुस्लिम रूलर्स
एनकरेज द राइटिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। जो उस टाइम के मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने भी जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे उनको लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट दिया, बहुत लोगों को एनकरेज किया कि हमें क्या करना चाहिए, हिस्टोरिकल अकाउंट्स लिखने चाहिए, यानी कि हिस्ट्री के बारे में लिखना चाहिए, जिससे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी पता चल सके और उन्हें गाइडलाइंस मिल सके कि कैसे दे हैव टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेशन। The well-known works of history of this period are तहकीक-ए-हिंद। उस टाइम के कुछ ऐसे वर्क हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड स्टिल nowadays they are very popular and these works are तहकीक-ए-हिंद। एक बुक है तहकीक-ए-हिंद जिसे लिखा है अल बिरूनी ने। सेकेंड इज़ इन-ए-अकबरी। इन-ए-अकबरी is written by अबुल फजल। तहकीक-ए-हिंद and इन-ए-अकबरी, these two books are very important for knowing the history of that period, and please you have to learn the writer's name, that is quite important from the point of view of examinations also. तहकीक-ए-हिंद is written by अल बिरूनी and इन-ए-अकबरी is written by अबुल फजल, which were written mainly in Persian. ये बुक्स मेनली पर्शियन में लिखी गई थी, बट आफ्टर सम टाइम दीज बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू अदर लैंग्वेजेस। जिसको जैसी नीड होती है, हम देखो जैसे पर्शियन में लिखी हुई है, लेकिन अगर हमें समझना है तो इंडियंस ट्रांसलेटेड दैम इन हिंदी, एंड अगर किसी और को समझना है तो दे ट्रांसलेटेड दैम इन देयर लैंग्वेज। तो इसलिए इनका ट्रांसलेशन हो गया, जिससे कि और भी लोगों को इनके बारे में पता चल पाया। The travel accounts of foreign visitors like Ibn Battuta, Marco Polo and Bernier are also important source of information about that time. और क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स होते हैं, जैसे उस टाइम के फॉरेन विजिटर्स थे इबन बतूता, मार्को पोलो एंड बर्नियर। ये लोग क्या करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते थे। नाउ क्यों करते थे, वाई दे ट्रैवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, दे जस्ट want to assure that how the administration and the functions of that country are, उस country के functions administration कैसे हैं, if they are according to their countries and if they find anything interesting on their administration or rules, they will follow up the same in their country. तो इससे क्या होता है, वो एग्ज़ामिन करते थे कि इस कंट्री में क्या नया चल रहा है या क्या हो रहा है, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसी को क्या करते थे, उनमें से वो जो पॉइंट्स उन्हें अच्छे लगते थे उनको वो अपनी कंट्री में फॉलो अप करते थे और उस कंट्री के बारे में ट्रैवल अकाउंट्स भी लिखते थे। जैसे कि अ पिक्चर इज़ हेयर ऑफ मार्को पोलो। मार्को पोलो इज़ अ वेरी फेमस फॉरेन विजिटर। ये जो फॉरेन विजिटर्स हैं, दे हैव रिटन ट्रैवल अकाउंट्स। उन्होंने अपनी ट्रैवल अकाउंट्स लिखी है और उसमें वो जिस कंट्री में भी गए उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, और उनके ट्रैवल अकाउंट से हमें एक ही साथ बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में, उनके फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, मिलिट्री के बारे में पता चल जाता है। तो द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द पॉपुलैरिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर विच एनकरेज द राइटिंग्स ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड फिर इसके बाद क्या हुआ था, उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में लोग काफ़ी ज़्यादा राइटिंग वर्क करते थे। जैसा कि वी हैव स्टडीज़ इन क्लास 6, उस टाइम पे मैंने आपको क्लास 6 में भी आई हैव एक्सप्लेन दैट कि लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शंस मीन्स क्या होता है, जिससे दीवारों पर या किसी पत्थर पर लिख देना है ना। तो लोगों के पास पेपर नहीं था, तो लोग क्या करते थे, दीवारों पर, केव्स में रहते थे तो केव्स की दीवारों पर, पत्थरों पर, पिलर्स पर इंस्क्राइब कर देते थे, लिख देते थे। तो लेकिन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेडिवल पीरियड वाज अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर। उनके पास पेपर था मेडिवल पीरियड में, तो इससे क्या हुआ, दे गेट एनकरेज, उन्हें एनकरेजमेंट मिला कि दे शुड राइट, तो इसीलिए उन्होंने रिकॉर्ड्स लिखे। रूलर्स, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज collected these manuscripts which are major sources of information about this period। और उस टाइम के जो रूलर्स थे, जो टेम्पल्स थे और जो मोनेस्ट्रीज थे, इन्होंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स द हैंड रिटन फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्ड्स,
इनको कलेक्ट करा और आज भी यही जो रिकॉर्ड्स हैं ये उसी तरीके से कंजर्व करके रखे हुए हैं, जिनसे वी गॉट द आइडिया ऑफ मेडिवल पीरियड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। और उस टाइम का जो हिस्टोरिकल पीरियड था, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स थे उसमें वो एक लैंग्वेज में नहीं लिखे होते थे, दे आर सो मैनी लैंग्वेज। और इनसे क्या होता था, अलग अलग कंट्री के लोग आते थे, वो अपनी लैंग्वेज में लिखते थे। फर्दर ऑल द नीडी पीपल ट्रांसलेटेड दैम इन देयर लैंग्वेज जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ दैट पीरियड। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they have undergone various changes in grammar, vocabulary and a meaning of interpretation of different words। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे उस टाइम से और इस टाइम में काफ़ी चेंजेस है, तो वो जो ग्रामर थी, उनकी जो वोकेबलरी थी, वो जो वर्ड्स की मीनिंग थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या आए, चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हिंदुस्तान इज़ रेफर्ड बाय सम पीपल एज अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव, but today many people take an exception to the word and want to refer it as India only। जैसे हम एग्जाम्पल पे देखते हैं हिंदुस्तान, बहुत सारे लोग उस टाइम पे हिंदुस्तान बोला करते थे, हिंदुस्तान उस प्लेस को बोला करते थे फॉर द प्लेस वेयर हिंदूज लिव, ठीक है। बट धीरे धीरे ये क्या हो गया, इस वर्ड का यूज़ कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि हम यूज़ नहीं करते हैं, वी स्टिल यूज़ दिस, बट nowadays its use is quite minimal। इसका यूज़ बहुत ही मिनिमल हो गया है और इसके प्लेस पे we use India only, इंडिया बोल देते हैं हम इसके प्लेस पे। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनमें बहुत चेंजेस हो गया है, हमने उनका यूज़ करना कम कर दिया है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री का नेम इंडिया है, जो कि भारत है। Hence terms that are used in different contexts at different time takes into account the cultural, social and political conditions। और जैसा मैंने आपको हिंदुस्तान का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस में भी आए हैं। Now see a picture here. This is the picture of मुगल किताब खाना। मुगल किताब खाना इट मीन्स लाइब्रेरी ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे भी लोगों को क्या था, रिटन वर्क का, रीडिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था। तो जैसे आज के टाइम में हमारी लाइब्रेरी होती है, हमारे स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ होती हैं, हम वहाँ जाके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इससे हमें एक पढ़ने का अच्छा सा एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है। इसी तरीके से इन्होंने भी मुग़ल किताब खाना यानी कि लाइब्रेरी का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो you can see it clearly from the picture here. Though manuscripts provide a lot of useful information to historian, yet the fast pace of development during this period makes their job quite tough. The movement of people in search of opportunities resulted in exchange of ideas regarding agriculture, weaving, food, etc. मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें उस पीरियड के बारे में बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन मिली और हमें ये भी पता चला कि धीरे धीरे वहाँ की जो जॉब थी, जो ऑक्यूपेशंस थी, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो आइडियाज़ थे, उनमें भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए। वो चेंजेस थे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, वीविंग, फूड एक्सेट्रा। Many ranks of differentiation emerged in the society. This was also a period of great technological development like the Persian wheel, spinning wheel, etc. और बहुत ही सारे यहाँ पे चेंजेस उस टाइम की सोसाइटी में अकर हुए और वो जो टाइम था मेडिवल पीरियड, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी हुए। पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, इस तरीके के बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए जिनका लोगों ने अपनी ज़िंदगी में यूज़ करा। Excavation of medieval towns, cities and villages along with paintings, monuments, sculpture, coins and inscriptions also give us a lot of information about the different aspects of the society and culture। और उस टाइम के जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं, जैसे एक्सकेवेशन ऑफ मेडिवल टाउन्स। एक्सकेवेशन मीन्स मैंने बताया है डिगिंग ऑफ ग्राउंड, ज़मीन खोद करके जब हमें कुछ चीज़ मिलती है, दैट इज़ नोन एज एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन में हमें मेडिवल टाउन्स मिले,
और सैरीज मिली, विलेजेस मिले जिनमें बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हमको, मॉन्यूमेंट्स मिले। अच्छा, सैरीज मीन्स होता है लाइक इन्स फॉर द ट्रैवलर्स। हम बोल सकते हैं जैसे आजकल रेस्टोरेंट होते हैं और जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हम कहीं विज़िट करने जा रहे हैं, हम वहाँ रहते हैं, तो वी मोस्टली बुक द होटल, हम वहाँ स्टे करते हैं। तो उस टाइम के जो विजिटर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उनके लिए सैरीज वॉज अ काइंड ऑफ इन। इन्स मीन्स होता है ढाबा, और रेस्टोरेंट टाइप का ही सैरीज एक ऐसा प्लेस था जहाँ हमारे विजिटर्स, फॉरेन विजिटर्स, ट्रैवलर्स आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते थे। हमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली, मॉन्यूमेंट्स मीन्स होता है स्मारक मिले, स्कल्पचर्स मिले, कॉइन्स मिले, इंस्क्रिप्शन मिले। स्कल्पचर्स मीन्स मूर्तियाँ हो गई, सिक्के मिले उस टाइम के, कॉइन्स। इंस्क्रिप्शंस मीन्स मैंने आपको बताया था कि जैसे वॉल्स पे या फिर किसी पत्थर पे, पिलर्स पे जो लिखा हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज इंस्क्रिप्शन। Let us have a close look at India during the medieval period in following chapters. अब देखिए, हमने इस चैप्टर में बहुत ही सारी बातें पढ़ी, इंफॉर्मेशन हमें मिली मेडिवल टाइम के बारे में। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आई टोल्ड यू अर्लियर, हैंड रिटन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्स्ट जो हैंड रिटन फॉर्मेट में होता है। सैरीज मैंने आपको बताया था इन्स फॉर ट्रैवलर्स, जो भी ट्रैवलर्स होते हैं उनके रुकने की जगह। इन्स मीन्स होता है अ ढाबा काइंड ऑफ प्लेस। स्क्राइब अ पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट। स्क्राइब वो लोग होते हैं जो किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं, उसको लिखते हैं, देख करके नोट डाउन करते हैं। सो दिस वॉज अवर चैप्टर medieval period. I hope this video will be helpful for you. We have discussed each topic of this chapter, but still if there is any confusion or any query from your side, you can ask me in the comment section. Thank you. Have a nice day.